all the videos related to letter writing. Letter writing के approximately 3 videos थे. So all the 3 videos have been posted on your Scholars ERP app. Also, I have posted like 6 lectures of Tiger King. There are 3 more lectures to post जिसमें आपके question answers भी involved हैं. But उसके अलावा 6 lectures मैंने post कर दिए हैं. तो whoever have missed the Tiger King can just go and look at the videos from Scholars ERP app. Today we are going to start a new chapter, that is third level. I am also very excited to teach you this chapter. Third level, where have you posted? हमारा जो Scholars ERP app है राहुल जी, उसके ऊपर मैंने post किया है Scholars ERP. Good morning everyone. Good morning whoever is joining now. We are starting our chapter, the third level. Third level. I think I have a first lecture of Tiger King is not posted. It is posted. Rahul, it is posted. देख लेना आप ढंग से उसको वापस से. 6 lectures are posted. Letter writing आपके जो एग्जाम में आने वाला है, that is posted. All right, I'm starting the chapter now. I have given you an overview, a summary, a synopsis of what the chapter is all about. Third level क्या है, किसको रेफर करता है, क्या third level exist करता है, नहीं करता है, everything we will. Explanation 2 is first lecture. चलो मैं देखता हूँ जो भी है. Whatever it is, I will see once again, Rahul. Let's come on to our chapter right now. उसके बाद में हम देखेंगे इस चीज को. Okay. All right, third level. Start करते हैं. It's written by Jack Finney, and before you read, the author has a very interesting question for us. Have you ever had any curious experience which others find hard to believe? क्या आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट, ऐसा इवेंट, ऐसी घटना, ऐसा एक्सीडेंट हुआ है which you have described to other people and they did not believe it? उसको उन पे विश्वास नहीं हुआ, ऐसा कुछ घटना हुई है क्या? वो हम देखेंगे. We will discuss this at the end of the chapter. अभी स्टार्टिंग में हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं. The presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. A very interesting, very comical line has been written कि New York Central, New York, New Haven और हैटफोर्ड के जितने भी रेलवे स्टेशन के प्रेसिडेंट्स हैं. ऑफ कोर्स न्यूयॉर्क इज अ वेरी बिग सिटी. आप अगर मुंबई जाएंगे तो मुंबई में आपको बहुत सारे स्टेशंस मिलेंगे. आप विरार से स्टार्ट होगा, देन देयर विल बी बोरीवली, कांदिवली, मलाड, अंधेरी, बांद्रा, व्हाट वी कैन से माहिम, दादर, चर्च गेट, इतने सारे आपको स्टेशंस मिलेंगे. तो इधर लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल. न्यूयॉर्क सेंट्रल, हियर सेंट्रल इज द reference of what we can say. New York Central is a reference of railway station. New York, New Haven and Hartford railroads will swear, will promise, will take an oath, will take a pledge. Swear करना मतलब कसम खाना, oath लेना, promise करना. क्या promise करेंगे? On a stack of timetables. See, railway stations पर रेलवे मास्टर्स को, प्रेसिडेंट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? ये टाइम टेबल. आप जब स्टूडेंट्स होते हैं, आप कोई चीज गलत, झूठ बोलते हैं तो आप क्या बोलते हैं? विद्या की कसम मैंने ऐसा नहीं किया, ये बोलते हैं. विद्या की कसम खाते हैं आप एज अ स्टूडेंट. यू स्वेयर ऑन योर बुक्स, यू स्वेयर ऑन योर स्टडीज, यू स्वेयर ऑन योर नॉलेज.
तो वैसे ही ये प्रेसिडेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशंस, प्रेसिडेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशंस मतलब वहां के जो रेलवे मास्टर्स होते हैं वो किस पे स्वेर करेंगे? स्टैक ऑफ टाइम टेबल। स्टैक मतलब पाइल, PILE, पाइल कि टाइम टेबल्स के ढेर पर ट्रेनों सर का वॉइस रोज क्लियर का नहीं आ टाइम रही। टेबल चेंज होता रहता है, तो वो सारे ढेर पर वो कसम खाएंगे। Voice is not clear. I am back, guys. Some internet connectivity problem was there, and I'm back now. Don't worry, I'm here again. All right. तो इतने सारे प्रेसिडेंट जो हैं वो टाइम टेबल के पाइल पर, टाइम टेबल के स्टैक पर स्वेयर करेंगे दैट देयर आर ओनली टू लेवल्स, देयर आर ओनली टू सेंट्रल स्टेशंस ओवर देयर। ज्यादा नहीं है, सिर्फ दो ही हैं। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? I say there are three. The author is describing जो हमारा protagonist है, जो हमारा हीरो है, वो बंदा बोल रहा है, हमारा नरेटर बोल रहा है कि यहाँ पर तीन है. There are three because I have been on the third level of the Grand Central Station. Grand Central Station जो रेलवे स्टेशन है उसके थर्ड लेवल पर मैं जा चुका हूँ. I have taken the obvious step. फिर उसने बोला कि ऑब्वियसली लोग मुझे पागल समझेंगे, लूनेटिक समझेंगे, क्रेजी समझेंगे, तो आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप ऑफ सॉल्यूशन. आई टॉक टू अ साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन. मैंने अपने एक साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड से बात की है. साइकाइट्रिस्ट आर द डॉक्टर ऑफ साइक. जो आपके माइंड और आपके स्पिरिट के डॉक्टर्स होते हैं उनको साइकाइट्रिस्ट बोलते हैं. इनको थेरेपिस्ट भी बोला जाता है. जो आपके माइंड की थेरेपी करते हैं दैट इज अ साइकाइट्रिस्ट, अ थेरेपिस्ट. बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, डिप्रेशन होते हैं, एंजाइटी होती है, पैनिक अटैक्स होते हैं. तो इन सबको डील करने में साइकाइट्रिस्ट जो है वो हेल्प करता है. साइकाइट्रिस्ट इज वेरी हेल्पफुल इन हेल्पिंग डीलिंग विद प्रॉब्लम्स ऑफ योर साइकिक. तो अब अब नरेटर ये बोलना चाह रहा है कि मैंने थर्ड लेवल देखा है. नाउ यू विल crazy, you will consider me mad. Don't worry, I have taken the option of talking to a psychiatrist friend of mine. मैं अब अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ. I told him about the third level at Grand Central Station and he said it was a waking dream wish fulfillment. Waking dream wish fulfillment. Underline this statement और इसको स्टार मार्क करो, उसको स्टार मार्क करो. साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड ने मुझे क्या बोला है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में कोई थर्ड लेवल नहीं है. देयर इज नो सच थर्ड लेवल विच एग्जिस्ट्स इन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. ये तुम्हारी वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है. मतलब समटाइम्स वी वांट समथिंग टू कम ट्रू. हम चाहते हैं कि कोई चीज जो है वो सच में हमारे सामने आ जाए. देन वी स्टार्ट इमेजिनिंग दैट दैट थिंग हैज कम ट्रू. हम अपनी विशेस को फुलफिल करने के लिए, अपने डिजायर्स को ट्रू करने के लिए कभी कभी उन चीजों को इमेजिन करने लग जाते हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है. हम सोचते हैं आई एम अ मिलियनेयर, मिलियनेयर राइट. एम आई मिलियनेयर राइट नाउ? नहीं. क्या मेरे पास करोड़ों रुपए हैं? नहीं है. बट मैं आपको अपने आप को मिलियनेयर मानने लग गया और मैं ऐसे एक्ट करता हूं दैट आई ओन अ फरारी, आई हैव ऑल द लग्जरी एट माय बिहेस्ट, all these things which are lavish, which are grand, which are expensive are under my bank account. तो इस तरह से जो बिहेवियर होता है it is a mental disorder of course. Explain the president only to. अरे भाई president ने सिर्फ बोला है. President of all these railway station will say that there are only two levels. खाली दो लेवल्स हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, बट मैं बोलता हूं कि वहां पर तीन लेवल हैं. ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट से ज्यादा अच्छा तो रेलवे स्टेशन को कौन जानेगा. हमारी स्कूल में हमारे डायरेक्टर और हमारे प्रिंसिपल के अलावा कौन उस स्कूल को और अच्छे से समझ सकता है? ऑफ कोर्स नॉट. तो वैसे ही प्रेसिडेंट स्वेर करेंगे कि मेरे यहाँ पर
हमारे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे खाली 2 लेवल हैं, बट चार्ली ने 3 लेवल इमेजिन किए हैं. ऑलराइट, तो ही सेड आई वाज अनहैप्पी. अब साइकाइट्रिस्ट जो है वो अपना डायग्नोसिस करेगा, अपनी थ्योरी लगाएगा कि ये बंदा 3rd लेवल को इमेजिन क्यों कर रहा है. So he said I was unhappy. That made my wife kind of mad. But he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it, and that I just want to escape. इस लाइन को जितना अंडरलाइन कर सकते हो करो, और this is the essence of the chapter. This is the summary of the chapter. There is lots and lots of competition going on in the modern world. The modern world is full of hurry and haste. Hurry मतलब जल्दबाजी करना, haste मतलब भी जल्दबाजी करना. Everyone is living a very hectic life. No one has time for their own self, for their family, for their relatives, for their friends. They cannot have relationships as they used to have few years back. जैसा रिश्ता, जैसा फ्रेंडशिप काफी साल पहले होता था, वैसा आज के जमाने में नहीं होता. The modern world is full of insecurity. There is lot of insecurity कि हम ये काम करेंगे तो कोई क्या कहेगा, who will pass a judgment. There is a fear, of course there is a fear. War, constant wars होते हैं, constant लड़ाई झगड़े, arguments होते हैं हमारी लाइफ में. There is constant worry, anxiety. तो ये सारी चीजें जो है वो मुझे डिप्रेस बना रही है. ऐसा किसने किसको बोला? साइकाइट्रिस्ट का, जिसका नाम है सैम, उसने बोला हमारे चार्ली को कि भाई मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी. और तुम न्यूयॉर्क में रहते हो, न्यूयॉर्क जैसा बिजी रूटीन कहीं पे नहीं है, न्यूयॉर्क जैसा बिजी सिटी कहीं पे नहीं है. वहां पे क्या होता है, वहीं पे म्यूट एवरीवन, डिस्टर्बेंस इज कमिंग. ऑलराइट, आई एम म्यूटिंग एवरीवन. सो न्यूयॉर्क सिटी में क्या होता है, यू गेट अप एट 8 o'clock या 7 o'clock, गेट रेडी, एंड आपको 8-8:30 तक तो आपको घर छोड़ना ही है. 9-9:30 यू रीच योर ऑफिस. 5:30 यू गेट फ्री, you come home, you take your dinner, you watch TV, and you go to sleep. Or again, the routine happens. So this is a machinery work. ये human being की life इस तरह से work नहीं होना चाहिए. वर्क, ये मशीन का वर्क है, टाइम टू टाइम चलना. तो न्यूयॉर्क जैसा बिजी सिटी में जब चार्ली रह रहा है, तो ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर, लॉट ऑफ स्ट्रेस, lot of tension, lot of depression going on with his work, with his family, with his everything. तो वही है कि इस सारे डिप्रेशन की वजह से ऐसा काम हुआ है that Charlie has imagined the 3rd level, or I just want to escape. तो 3rd level represents what? यहाँ लिखा हुआ है, what does the 3rd level refer to? It refers to a medium through which Charlie can escape the worries, the anxiety, the insecurity of the modern world. ये एक ऐसे मीडियम को, ऐसे प्लेटफॉर्म को, ऐसा जरिया रिप्रेजेंट करता है, ऐसा माध्यम रिप्रेजेंट करता है जिससे चार्ली जो है मॉडर्न वर्ल्ड को एस्केप कर जाए. कि थोड़े टाइम के लिए ही सही, हम जब अपनी फैंटेसी में चले जाते हैं, अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं, अपने क्रिएटेड वर्ल्ड में चले जाते हैं, तब पूरा पीछे का यूनिवर्स जो है वो डिसअपियर हो जाता है. आप इमेजिन करो, कोई पेंटर है, वो पेंटिंग बना रहा है. पेंटिंग में उसने माउंटेन्स बनाए, उसने झील बनाई, उसने सन बनाया, उसने बहुत सारे रॉक्स बनाए. तो ऑल दीज थिंग्स इज इन हिज इमेजिनेशन. तो whenever he is painting, whenever he is sketching, whenever he is filling in the colors, क्या उसके दिमाग में अपने आसपास का एनवायरनमेंट रहता है क्या? कि मेरे पास में बेड है, मेरे पास में सोफा है, यहाँ पे ये विंडो है, यहाँ पे ये वास रखा हुआ है, यहाँ पे ये प्लांट रखा हुआ है. नो, उसके दिमाग में एक ही ध्यान रहता है, द सीनरी, द माउंटेन्स एंड द वैलीज एंड द फ्लावर्स एंड द रिवर एंड द सन एंड द बर्ड्स. ये सारी चीजें उसके दिमाग में रहती हैं. तो फॉर द मीन वाइल, whenever he is painting the picture,
उसका दिमाग उस पेंटिंग में इतना इनग्रोज रहता है, इतना इन्वॉल्व रहता है, दैट he escapes into his own world. उसको अपनी एक्चुअल वर्ल्ड का कोई अता पता नहीं है, रियल वर्ल्ड का कोई अता पता नहीं है. He gets absorbed into the world of his own imagination. तो वैसे ही जब चार्ली ने थर्ड लेवल इमेजिन किया था, दैट वर्ल्ड वाज अ मीडियम ऑफ एस्केपिज्म, कि वो उसमें थोड़े टाइम के लिए एस्केप हो जाए, ताकि मॉडर्न वर्ल्ड की जो वरीज हैं, इनसिक्योरिटीज हैं, फियर है, उन सबको वो पीछे छोड़ दें. यहां तक कोई डाउट है क्या? यहां तक कोई डाउट है तो मुझसे पूछो जल्दी से. आस्क मी राइट अवे. नो? नो डाउट एवरीवन? देयर इज नो डाउट फॉर एवरीवन? माई वाइफ काइंड ऑफ मैड. हाँ, वो मैं बताता हूँ, चलो. तो ऑफकोर्स जब सैम ने बोला कि यू आर अनहैप्पी, सामने साइकाइट्रिस्ट ने अपने फ्रेंड को बताया कि भाई तुम ना खुश हो इसलिए तुमने थर्ड लेवल को इमेजिन किया है, तो उसकी वाइफ को थोड़ा गुस्सा आया. वाइफ को गुस्सा आएगा कि भाई इनको क्या दुख है, मैं इनके साथ हूं, मैं इनको हैप्पी रखती हूँ, इट्स माई जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ माई बेटर हाफ, टू टेक केयर ऑफ माई पार्टनर, टू टेक केयर ऑफ माई हस्बैंड. और इनके फ्रेंड बोल रहे हैं कि तुम अनहैप्पी हो, तो ऑफकोर्स दैट स्टेटमेंट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड. But then he explained, he कौन है? Sam, the psychiatrist friend explained कि भाई अनहैप्पी का मतलब ये नहीं कि तुम अपने फैमिली से खुश नहीं हो या अपने पत्नी से दुखी हो. अनहैप्पी मतलब बिकॉज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड स्ट्रेस, उसका जो स्ट्रेस मिलता है, उसका जो प्रेशर आता है, उससे जो डिप्रेशन आता है, उसकी वजह से तुम ना खुश हो. तो आई वॉन्ट टू एस्केप. वेल, हु डजंट? बोलते हैं सब एस्केप करना चाहते हैं. क्या आप इस वर्ल्ड में रहना चाहेंगे जिसमें कांस्टेंट वरी है, कांस्टेंट कंपटीशन है, एवरीवन इज सो बैड, एवरीवन इज सो मीन, एवरीवन इज सो सेल्फिश? कोई नहीं रहना चाहता. हम भी चाहते हैं कि हम ऐसे वर्ल्ड में हो जहां पे हमारी रिस्पेक्ट हो, हम दूसरों की रिस्पेक्ट करें. एवरीवन इज सो हैप्पी, एवरीवन इज विदाउट एनी डिजीजेस, विदाउट एनी वरी. तो एवरीवन वांट्स टू एस्केप, everyone wants to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. But सारे जने Grand Central Station के थर्ड लेवल में नहीं चले जाते हैं एस्केप होने के लिए. भाई सारे जने जाएंगे कैसे? अब एक पर्सन ये है और दूसरा पर्सन ये है, इसका माइंड अलग है, इसका माइंड अलग है. द पर्सन, दिस पर्सन विल थिंक इन अ डिफरेंट मैनर, इसका माइंड का साइकोलॉजी डिफरेंट होगा और इस पर्सन का साइकोलॉजी डिफरेंट होगा. हो सकता है ये एस्केप होने के लिए बुक्स पढ़ता हो, ये एस्केप होने के लिए पेंटिंग करता हो, ये एस्केप होने के लिए म्यूजिक सुनता हो, मूवीज देखता हो, फ्रेंड्स के साथ पार्टी करता हो, ड्रग्स लेता हो. एनीथिंग कैन बी पॉसिबल. हम एस्केप होने के लिए ये सारी चीजें करते हैं. और इस बंदे ने, चार्ली ने, एस्केप होने के लिए क्या किया? थर्ड लेवल इन्वेंट कर दिया. अपने दिमाग में बहुत बड़ा थर्ड लेवल क्रिएट कर दिया. यू आर गेटिंग माई पॉइंट नाउ? हम ये सारी जो एक्टिविटी करते हैं, आप जब मूवी देखते हो या जो आप कभी कोई नोवेल उठा के पढ़ते हो, यू गेट इन्वॉल्व इन दैट वर्ल्ड. आप उस किरदार में घुस जाते हो, आप उन सारे कैरेक्टर्स में घुस जाते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन गाना गा रहा है, यहाँ पे कौन डांस कर रहा है, एवरीथिंग. बट चार्ली का दिमाग का फ्रेम अलग था, उसका दिमाग अलग तरह से बना हुआ था, स्ट्रक्चर. तो ही इमेजिन अ थर्ड लेवल. But that's the reason he said, and my friends all agreed. That's the reason. What is the reason? कि Charlie wanted to escape from the modern world. Everything points to it, they claimed. मेरे friends ने भी agree किया. Sir, all the videos of Tiger King has not been uploaded. I think so because there are only 3 videos. महक जी, मैंने पहले ही बोल दिया, टाइगर किंग के सारे वीडियोस अपलोड नहीं हुए हैं, 6 वीडियोस हुए हैं. आप मुझे अपना सेक्शन बताओ क्लास का. विच सेक्शन आर यू इन? साइंस का सेक्शन है राइट आपका, 11th ए. लेट मी चेक. लेटर राइटिंग के सारे वीडियोस हो चुके हैं. 11th ए का लेट मी चेक राइट नाउ कि मैंने अपलोड तो किए थे सारे. मतलब 6 टाइगर किंग के वीडियोस हैव बीन अपलोडेड, सो दैट इज देयर. लेट मी चेक वंस अगेन, डोंट वरी.
भाई 6 वीडियोस आ रहे हैं यहाँ पर। मेरे मोबाइल में तो यही शो हो रहा है। 26 नवंबर, 27, 28, 30 नवंबर, 1 दिसंबर एंड 2 दिसंबर, इस डेट्स में आई हैव गिवन ऑल द वीडियोस। तो 6 वीडियोस को आप देख सकते हैं। बाकी के 3 वीडियोस आज अपलोड हो जाएंगे। लेटर राइटिंग के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो आई होप आई एम, आपके दूसरे टीचर्स भी कर रहे हैं क्या अपलोड दूसरे चैप्टर्स के? यस, सारे अप टू डेट हो रहे हैं अपलोड, या मैं ही सुपर फास्ट हूं? ऑलराइट, सबके हो रहे हैं, वेरी गुड। अरे वो 26 दिसंबर चला गया। चार, किसने बोला था 26 नवंबर का नहीं है, 26 दिसंबर हो गया गलती से वो। सो नाउ चेक इट आउट अगेन, यू विल फाइंड इट करेक्टेड। ऑलराइट महक, कल रात को ही मैंने अपलोड किए हैं, डोंट वरी, यू कैन वॉच देम टुडे इफ यू वांट। कमिंग बैक टू आवर चैप्टर अगेन, चार्ली के फ्रेंड्स ने भी अग्री किया कि यस, everything points to it. My stamp collecting, for example, that's a temporary refuge from reality. Refuge, shelter, to take shelter. अब चार्ली की एक हॉबी है, चार्ली की एक हॉबी है। कौन सी हॉबी है? स्टैम्प कलेक्शन की। वी हैव सो मेनी स्टूडेंट्स विद अस। एनी वन ऑफ यू हैज दिस हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन? किसी को स्टैम्प कलेक्शन करना अच्छा लगता है क्या? Yes, Himanshu Bora replied yes. All right. See, मेरे टाइम पे तो बहुत सारे फ्रेंड्स जो मेरे थे वो स्टैम्प कलेक्ट करते थे। आजकल तो चलो पोस्ट भी इतनी नहीं आती है, सारा काम मैसेजेस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू हो जाता है। बट जब व्हेन आई वाज अ किड, एंड्रॉयड फोन्स वर नॉट अ ट्रेंड दैट टाइम, सो मेनी यूज्ड टू कलेक्ट स्टैम्प्स। तो वही चार्ली की एक स्टैम्प कलेक्टिंग की एक्टिविटी है। तो उसके लिए भी उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि दैट इज अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, कि यू आर टेकिंग अ टेम्पररी एस्केप फ्रॉम रियलिटी। तुम कुछ समय के लिए जब स्टैम्प कलेक्शन करते हो, जब अपना कलेक्शन का बॉक्स निकाल के लाते हो, तब रियलिटी भूल जाते हो। तुम उन स्टैम्प में इतना खो जाते हो, इतना इंग्रोस्ड, इतना इंगेज्ड, इतना डिजॉल्व, एब्जॉर्ब्ड हो जाते हो, डूब जाते हो उसमें, दैट यू फॉरगेट द रियलिटी। So, Acha, you're a member of Philately Club. That's a very good thing to know, Himanshu. Very happy to know that you follow this. So, temporary refuge from reality, wahi that for a short period of time, for a little period of time, you escape from reality when you indulge in stamp collecting activity. वही अगेन मैंने ये सारी चीजें गिनाई थी कि आप मूवी देखते हो, आप ड्रग्स लेते हो, आप म्यूजिक सुनते हो, डांस करते हो, पेंटिंग करते हो, ये सारी चीजें इज अ काइंड ऑफ अ हॉबी ओनली। आई ऑल्सो डू स्केचिंग, मैं मंडला ड्राइंग करता हूँ, मैं स्केचिंग करता हूँ। आई एम वेरी मच श्योर इट इज टू एस्केप रियलिटी, कि भाई वी आर कूप्ड अप इन दिस हाउस फॉर अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स नाउ। मार्च से दिसंबर हो गया है और हम इसी घर में बंधे हुए हैं, ज्यादा बाहर घूम फिर नहीं सकते हैं। तो ऑफ कोर्स वी फील इरिटेटेड, वी फील एजिटेटेड, वी फील annoyed, we feel angry most of the times, and that is why I keep myself busy in reading books. अभी मैंने 3 दिन में 4 दिन में 4 novels कंप्लीट कर दी। फिर आई वाज स्केचिंग लॉर्ड कृष्णा's पेंटिंग फ्यू डेज अगो। अभी 6-7 दिन से आई वाज इल, आई वाज सिक। वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड बोल तो रहे हैं, वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड। अभी आई हैव नो आइडिया हाउ ट्रू इट इज। I think in England and in America, vaccine supply has already been started, but keeping vaccine in India is a little bit hard because vaccine का temperature बहुत low होना चाहिए. So that is there. तो वही है कि we are doing so many activities so that we can keep busy, we can not get involved in this real world, क्योंकि real world जो है, it's not a very desirable world, it's not a very good world. So, well, maybe, but my grandfather didn't need any refuge from reality. Things were pretty nice and peaceful. तो ये बोल रहे हैं कि भाई चलो, I agree that I want
एस्केप फ्रॉम द रियलिटी, और हो सकता है इसी वजह से मैं स्टैम्प कलेक्शन भी करता हूँ। बट मेरे ग्रैंडफादर को तो किसी रियलिटी से एस्केप करने की जरूरत नहीं थी. He did not need any shelter from reality. Things were pretty nice and peaceful. My grandfather also used to collect stamps, but he was in a very peaceful time. He was in a very silent time. उस टाइम पे इतना रश, इतना हरी, इतना हेस्ट नहीं होता था. In his day, in his day, from all I hear, he started my collection. But उनके दिनों में बहुत पीस होता था, बहुत क्वाइट होता था, बहुत शांति होती थी. फिर भी उन्होंने स्टैम्प कलेक्शन की एक्टिविटी स्टार्ट की. अगर आप लॉजिक लगाते हो दैट माय स्टैम्प कलेक्शन इज ड्यू टू माय एस्केप ऑफ रियलिटी, तो फिर मेरे दादा को किस बात से रियलिटी से भागने की जरूरत थी? In news, it was shown that there is a book of 113 pages which shows that how to use it and to whom it should be given. Of course, there's a very strict rules and restriction. आपको I think एक दिन में सिर्फ 100 patients को ही लगा सकते हैं एक center में vaccine, and also that patient must stay there for half an hour to notice any kind of symptoms, if he's feeling better or not. Why? So it's the procedure of vaccine. Of course, it's a procedure of vaccine. Like if you're storing that vaccine 70 minus 70 degrees Celsius, and if you're taking it inside, आपकी veins को find करना, आपको properly inject करना, वो सारा is a big process. Or how much quantity it should be. So I guess lots and lots of time and effort is required, and it's a matter of life and death. कि भाई अगर वैक्सीन ढंग से नहीं लगी और आप बाहर चले गए और आप कोविड कंटेमिनेट हो गया, तो आप वैक्सीन वालों का ही गला पकड़ोगे सबसे पहले. सो इट्स मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ. और अभी तो वैसे ही गला पकड़ना इज, you know, the doctor strike is going on right now in Bhilwara because of some unfortunate incident that happened. Liquid nitrogen temperature, अब see every day there is a new news that इसको -70 में स्टोर करना, -40 में स्टोर करना है. Every day they are making a development in vaccine. हो सकता है किसी दिन ऐसा वैक्सीन आए जो फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं. So that is it कि भाई we cannot say for sure what kind of vaccine we will be getting in India, and given the population of India, which is more than 140 million people, sorry, 140 million बहुत कम होते हैं, 1.4 billion is there actually, 1400 million हो गया. So that's a lot of population, and it's quite hard to supply vaccine to all these people. और वैसे भी हमारे इंडिया में इम्यून सिस्टम अच्छा है लोगों का, तो दे आर सर्वाइविंग. Okay, let's come back to our chapter. So my grandfather lived in a very peaceful time. He lived in a very silent, quiet time. Then why did he start this stamp collection? क्योंकि मैं जो collection करता हूँ वो मैंने मेरे grandfather से ही लिया है. अगर मैं escape करने, reality से escape करने के लिए stamp collection करता हूँ, फिर why did my grandfather need an escape from reality? It's a nice collection too. Blocks of 4 of practically every US issue, first day covers, and so on. President Roosevelt collected stamps. Do you know? अब मैं आपको ये बता देता हूँ फर्स्ट डे कवर्स क्या होता है. जो फिलेटली करते हैं, फिलेटली इज द स्टैम्प कलेक्शन का हॉबी. स्टैम्प कलेक्शन का हॉबी इज कॉल्ड फिलेटली. ऑलराइट, ओके. जो फिलेटली करते हैं वो बहुत क्रेजी होते हैं कि आई वॉन्ट टू acquire the new stamp as soon as possible. अगर आज सपोज अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्टैम्प रिलीज होता है, उसमें वो बैठे हैं अटल बिहारी जी, तो मुझे वो स्टैम्प आज का आज चाहिए. तो फिलेटली करने वाले स्टैम्प एंथुसियास्ट क्या करते हैं? वो स्टैम्प खरीदेंगे, वो अपने आप को ही एक ब्लैंक लेटर लिखेंगे, अपने ही एड्रेस पे पोस्ट करेंगे, और वहां पे वो चिपका देंगे स्टैम्प. तो वो अल्टीमेटली दैट स्टैम्प विल कम टू देयर ओन पोजेशन, उनके खुद के घर पे ही आएगा, और वो अपने स्टैम्प कलेक्शन वाले बॉक्स में इसको संभाल के रख देंगे कि दिस इज द फर्स्ट डे कवर. फर्स्ट डे कवर, व्हेन यू फिल इन अ ब्लैंक लेटर, put it in the envelope and post it to yourself so that you can have the stamp of that new release day.
जिस दिन रिलीज हुआ उस दिन का स्टैम्प आपके पास हो जाएगा। उसने बोला, और चार्ली और बोल रहा है, अब यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो है वो भी स्टैम्प कलेक्शन किया करते थे, तो क्या उनको भी रियलिटी से एस्केप होने की जरूरत थी? आज के लिए इतना ही रखेंगे। डू यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट इन दिस? एनी काइंड ऑफ डाउट डू यू हैव? नो? ऑल राइट, वेरी गुड। आज के लिए मैं थोड़ा कम रख रहा हूं ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाओ। एस्केप फ्रॉम रियलिटी, एस्केप फ्रॉम रियलिटी। नाउ today's homework is, first of all, you have to attempt this question. What does the third level refer to? It refers to a platform or a medium through which Charlie finds escape through the reality. He is fed up लिख देता हूँ, he is fed up of the modern world. He is fed up of the modern world. The modern world is full of worries, anxiety, insecurity, war, and fear. There is a lot of rush and hurry going on in the modern world. So, to find escape from such harsh reality, he has imagined a third level in his own mind. That is, you have to write. Second question, आपका आपके लिए है, what are the three things you do to escape from reality? इसका रिपीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन तो ये रहा, आपके बुक पे ही है, फर्स्ट पेपर पेज पे। व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू? दिस इज योर क्वेश्चन। तो व्हाट आर द थ्री थिंग्स यू डू टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी? ऐसी तीन चीजें आप क्या करते हैं जो आपको रियलिटी से एस्केप करने में हेल्प करती हैं। दिस यू हैव टू राइट अपॉन योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। कम से कम ये तो अपने से लिख लेना, किसी का कॉपी मत करना। एंड आई एम रियली होपिंग टाइगर किंग के क्वेश्चन आंसर्स और जो 2 लेटर्स आपको दिए थे वो कंप्लीट हो चुके होंगे। जिन्होंने कंप्लीट नहीं किए हैं, दे कैन डू इट टुडे ऑनवर्ड्स। आज से करना स्टार्ट कर दीजिए। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ऐसे भागते हैं, थैंक यू बोलते ही तो मतलब जो पार्टिसिपेंट्स की, जनता की संख्या कम पड़ती है। वी हैड 69 स्टूडेंट्स टुडे और 46 रह गए हैं अभी। क्या भागते हैं। चलो बाय बाय, जाओ जाओ, खुशियां मनाओ, जी लो अपनी जिंदगी। थैंक यू, थैंक यू।